Now, one article we have discussed earlier also, and I have made you written that that was the uh, obesity, increasing obesity in teenagers, right? So, the second one we are going to do today, the topic is pros and cons of social networking sites. So, first of all, we will discuss it. So, today is 17th 11:20 and it is Tuesday, and we are discussing an article. We will discuss it and then you will write it. ठीक है, class 8th. So the topic is pros and cons of social networking sites. Means हमारे जो social networking sites हैं, what are the social networking sites? Like FB, Facebook बोलते हैं जिसे हम, then Instagram, and many other social networking sites like this, WhatsApp. All these are the social networking. So what do you think, what do you suggest that are these social networking sites good or bad for our these children as well as for the grown-ups also? So what do you think, is it a good thing or a bad thing for our society, for our children, for our future? So here I have jotted out some hints, like social networking sites में क्या होता है, teenagers क्या करते हैं, they waste their time. फर्स्ट पॉइंट मुझे ये लगा. सेकेंड थिंग ये होता है कि पेरेंट्स फियर दैट whether they are watching something useful or something harmful, right? Because all type of things come into that social networking sites. It is knowledgeable also, as well as it is very harmful also for the minds of the kids. So one more thing is that the more you use the mobile phones and these networking sites, so the more eyesight is weakened. So nowadays you can see that very small children are wearing spectacles. This is only the over usage of mobile phones. हम बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स और नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं ना बच्चे, तो इस वजह से हमारी आई साइट पे भी असर पड़ता है. तो हमारे प्रॉस एंड कॉन्स मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. प्रॉस मीन्स एडवांटेजेस, कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस. तो हमारे प्रॉस क्या हो सकते हैं, हमने इफ़ यू वांट टू स्प्रेड सम इंफॉर्मेशन, so it can very easily spread very fast. Then we come to know about the news also. Sub news throughout the world, we get it very easily and very fast. It solves the crimes also, it helps in solving the crimes also. It helps the students with academic work, improves the relationships also. So these are some points I have jotted down, so we will expand these points further. Now if we see at the disadvantage part, तो उसमें क्या होता है बच्चे, इट इंक्लूड्स द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन. बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड हो जाती है इसके थ्रू, नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू. You get so many message of some false messages that if you do this, if you forward this message 10 times, so you will get the good news and things like that. So this is all just the rumors and the false information. And at the YouTube you get so many videos that are totally false. बिल्कुल झूठ होता है यूट्यूब में. यू विल फाइंड आउट मैनी वीडियोज सच लाइक दैट. सो दे गिव ऑल द फॉल्स इन्फॉर्मेशन. देन वेस्टेज ऑफ टाइम भी है स्टूडेंट्स का. इट लीड्स टू द स्ट्रेस ऑल्सो. आई साइट भी आपकी वीक हो जाती है. मिसअंडरस्टैंडिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं. तो जो चिल्ड्रन होते हैं बच्चे, दे इफ़ यू डोंट सोशलाइज विद द पीपल, वी आर कॉल्ड एज द सोशल पीपल. हम लोग बोला जाता है ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल. वाई मैन इज़ कॉल्ड एज अ सोशल एनिमल? बिकॉज वी कांट सर्वाइव इन अलोन. हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं. अगर हम अकेले रहने लग जाएं तो हम लोग सोशल नहीं कहलाएंगे, हम लोग तो फिर एंटी सोशल हो जाएंगे. उससे क्या होता है बच्चे कि आप लोगों को दूसरे से इंटरेक्ट करना ही नहीं आता. तो
तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? चिल्ड्रन जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फ़ोन्स में ही बिज़ी रहते हैं, है ना? उससे क्या हो रहा है, बच्चे सेल्फ सेंटर्ड बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। दे आर बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड, मीन्स उनको अपने अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा। सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटीज़ अगर बच्चे बन जाएंगे, उसमें उनमें क्या आएगा, लोनलीनेस आएगी, ना वो सोशलाइज करेंगे और डिप्रेशन में जाएंगे। तो ये इनके नुकसान भी हैं। एंड and it affects the it has effects on the eyesight also, bad effect। ठीक है ना? तो ये हम पॉइंट्स को अब हम स्प्रेड करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, एंड वी विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ आर्टिकल। सो हमने वेन एवर वी हैव टू राइट द आर्टिकल, हमें पहले पॉइंट्स जॉट आउट कर लेने हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स लिख लिए हमने, फिर अब हम इनको एक एक करके उठाएंगे और now we will exaggerate them into an article. Now just see, we will take the first point. Social networking has taken today's youth by storm. Clear? Teenagers go crazy over it. आजकल हैं ही बच्चे crazy, तो हैं ही इनके ऊपर। And they spend most of their time in the socializing. और क्या करते हैं बच्चे आजकल? सोशलाइजिंग में ही ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं। दे आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। So at the same time, it has created worry among the parents of the teenagers also, because children are spending most of their time on these sites. So parents are, but obviously parents will be worried, बहुत ज़्यादा worried होंगे पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे आजकल सारा टाइम फ़ोन पे ही रहते हैं और इन साइट्स पे ही रहते हैं। पेरेंट्स नाउ फियर द वर्स्ट, अब उनको लग रहा है कि इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है। when they hear of the ruined reputations, and उनको और भी बुरा लगता है जब उनको ये पता चलता है कि जो उनकी रेपुटेशन है बच्चों की, वो बिल्कुल रुइन होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। कैसे? अगर आप फ़ोन पे गलत चीज़ें देख रहे हैं, साइट्स पे गलत चीज़ें देख रहे हैं जो आपके लिए नहीं बनी हैं, देयर आर मैनी सेंसर्ड थिंग्स विच आर अप टू द एज लिमिट। यू हैव, देयर आर मैनी sites which are not for the under 18, and children are watching it. These sites are easily accessible, so it is affecting their reputations also। ठीक है ना? एंड बच्चे क्राइम्स भी कर देते हैं, ऐसे बच्चे फिर कुछ मिसलीड हो जाते हैं इन चीज़ों से। सो साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन प्रेडेटर्स एंड अदर डेंजर्स, क्योंकि अगर हम वो चीज़ें देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग those sites, those are not for your age, so things like this can occur। साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं, ऑनलाइन प्रेडेटर्स भी बहुत हो रहे हैं। प्रेडेटर्स बच्चे, ऑनलाइन मीन्स आप किसी को टारगेट करते हैं और आप उसको शिकार बनाते हैं अपना। तो प्रेडेटर्स बहुत हो रहे हैं ऑनलाइन जैसे, और अदर डेंजर्स, और भी बहुत सारे डेंजर्स हैं बच्चे, ये तो हैं ही। साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा राइज पे हैं, प्रेडेटर्स भी बहुत आजकल ऑनलाइन रहते हैं। आपको ऑनलाइन फेक वो बनाकर अकाउंट्स, आपको वो आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं और आपकी रेपुटेशन को रुइन कर सकते हैं। मींस आपकी अकाउंट में आपको फेक अकाउंट बना के आपसे फ्रेंडशिप कर लेंगे, एंड देन दे कैन जस्ट misuse your photographs and all that। You can understand what I'm trying to say, right? So all these are the dangers. When we talk about the pros and cons, then there are always two sides of the coin। तो हर चीज़ के हम बोलते हैं ना, there are the coin has two sides, बोलते हैं ना हम, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना। So it means that two sides of a coin। Let us take the positive aspect of the networking side। तो पहले हम क्या लेते हैं? प्रॉज लेते हैं। हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दी, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने डाल दिया कि आजकल क्या हो रहा है। उसके बाद हम प्रॉज पे आते हैं। सोशल नेटवर्क साइट्स स्प्रेड इंफॉर्मेशन फास्टर देन एनी अदर मीडिया। ये तो बात आप मानते हैं, ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, दे स्प्रेड इंफॉर्मेशन फास्टर देन एनी अदर मीडिया। सबसे जल्दी यहाँ फैलती है,
है ना, इन्फॉर्मेशन. सो दीज साइट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूज़. हमें सबसे जल्दी न्यूज़ कहाँ से पता चलती हैं? नेटवर्किंग साइट से. ठीक है. सो दीज साइट्स हेल्प सॉल्व क्राइम्स मोर क्विकली. क्राइम्स भी ज़्यादा होते हैं तो उतनी जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दीज सेट सोशल नेटवर्किंग साइट्स. तो अभी हम इनका पॉजिटिव साइड देख रहे हैं. तो इस साइट्स में बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूज़ हैं, स्प्रेड बहुत जल्दी हो जाती हैं, और बेस्ट सोर्स है न्यूज़ का. और ये जो साइट्स हैं दे हेल्प इन सॉल्विंग द क्राइम्स मोर क्विकली ऑल्सो. सो द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स. और बेस्ट पार्ट क्या है इसका कि इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स अ लॉट. दे हेल्प अ स्टूडेंट टू डू बेटर एट स्कूल. ठीक है. स्टूडेंट्स को हेल्प करता है एकेडमिकली ये, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में अच्छा एकेडमिकली इम्प्रूव कर सकें. बेस्ट एडवांटेज यही है हमारा. दे हेल्प अ स्टूडेंट टू डू बेटर एट स्कूल. दे कैन ईजीली discuss educational topics, assignments. So they can also discuss the educational topics as well as the assignments there also. They can score better grades in academics if you are using it positively. अगर आप अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, एजुकेशनल चीज़ें देख रहे हैं, तो नो डाउट it will help you a lot and it will help you score better grades in the academics. It improves the relationships. Now how it improves the relationships and increase the friend circle? कैसे? People can connect with their family and friends living abroad. एक तो है बच्चे कनेक्टिविटी तो हो जाती है. अब जो आपके रिलेटिव्स अब्रॉड में रह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आप उनसे कनेक्ट रहते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस सोशल नेटवर्किंग साइट्स. स्काइप है, टो टॉक है, या ईमेल फैसिलिटीज़ हैं, इसके द्वारा आप यू connect with your friends and relatives. So it helps in the connectivity and increases your friend circle also. It helps to stay in touch with friends. They cannot meet regularly. So तो आप इन टच रहते हैं अपने फ्रेंड्स के, और जिनको आप रेगुलरली नहीं मिल पाते, जो आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू आप उनसे कनेक्ट में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं. अब आ जाते हैं हम कॉन्स पे. सोशल नेटवर्किंग साइट्स हेल्प टू स्प्रेड द फॉल्स एंड अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन. ठीक है ना. कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन फैल जाती है जो कि फॉल्स होती है और अनरिलायबल होती है, विच में हार्म ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ एंड इवन द नेशंस. तो ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन बच्चे सब चीज़ों पे असर पड़ता है, ग्रुप्स पे भी पड़ता है, कम्युनिटीज़ पे भी, और पूरी नेशन के लिए भी वो गलत है. स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं बाय प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड अदर सोशलाइजिंग. कीप ऑन socializing on their phones and on their laptops. So this way they waste their time. So therefore they tend to score lower grades. तो एक तरफ से अगर आप अच्छे ग्रेड्स इम्प्रूव भी करते हैं, तो आप अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और सोशलाइजिंग कर रहे हैं, तो आपके जो ग्रेड्स हैं वो लो भी हो सकते हैं. दोनों तरफ है बच्चे. तो इट इज़ अप टू यू दैट हाउ यू यूज़ दिस सोशल नेटवर्क्स साइट्स. सो विच लीड्स टू द स्ट्रेस. अब आपके अगर एकेडमिक्स में लो आएगा तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा और आपको भी बुरा लगेगा. मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, उससे क्या होगा, बच्चों में स्ट्रेस होगा, है ना, और पेरेंट्स में भी होगा. चिल्ड्रन स्पेंड लेस टाइम इन फेस टू फेस इंटरेक्शन. और फिर बच्चे क्या हो रहा है आजकल, फ़ोन पे ही बात करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, फेस टू फेस नहीं बात करना पसंद कर रहे. तो इस वजह से जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो बच्चे कैसे बनेंगे, सेल्फ सेंटर्ड. द पीपल हु ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन्स. सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटीज़ बनेंगी, पर्सनैलिटीज़ आधा वर्ड इधर है, और उनका जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा. सो पर्सन में सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड जनरल डिस्ट्रेस. तो उसके कॉजेज़ ये हो सकते हैं. अगर बच्चे ज़्यादा टाइम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बिता रहे हैं, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये वाली बातें हो सकती हैं. सो टू सम अप, हम एंड में कैसे करेंगे, वी कैन से दैट इट्स वाइज टू ट्रेड केयरफुली. ट्रेड TREAD,
कि हमें केयरफुली देखना है कि हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स का पॉजिटिवली हमने कैसे इसको यूज़ करना है. सो वी अवेयर ऑफ द प्रॉस एंड कॉन्स बिफोर वी इंडल्ज. तो हमें इन चीज़ों में इंडल्ज होने से पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं. So with this we complete one more article. So I hope I am able to explain it and it is clear to all of you. So you write down the title and then start from here. No need to write the hints. ये तो सिर्फ आपको explain करने के लिए मैंने लिखे थे. टाइटल के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए. So all of you complete